Hello children, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain arithmetic progression, which is chapter 5th of your mathematics books. Here the chapter is arithmetic progression. So firstly we have know about what is the progression. So children, progression sequence which follow a definite patterns are called progression. Now sequence which follow a definite patterns are called progression. Sequence which follow a definite pattern are called progression. ओके तो सबसे पहले फिर हम ये जाने चिल्ड्रेन कि जो है अब ये सारे सीक्वेंसेस के लिए हैं. सो वी हैव sequences and called progression. Now we have know about what is the sequence. What is a sequence? Some numbers arranged in the definite order according to a definite rule. When some numbers are arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. Just for suppose करो odd number की हम sequence लेते हैं. odd number, this is represented by 2n plus 1. n is equal to 1. First number is 2 into 1 plus 1 and this is 3. When n is equal to 2, 2 into 2 plus 1, this is 5. And n is equal to 3, this is 2 into 3 plus 1 and this is 7. So our sequence is 3, 5, 7 and so on. Okay, this is a sequence. But when you have see this always follow a definite pattern. What's the pattern? Here 5 minus 3 is equal to 2, 7 minus 5 is equal to 2. This is a constant. This is a constant and this is also called the common difference. Okay, so here we have see that every term of this sequence is less y its preceding term y2. So when we have subtract 5 minus 3 it comes 2, 7 minus 5 2. So this sequence is called in AP. Progressions, we have know that progressions are three types of children: arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. In class 10th we have to only learn about the arithmetic progression. So here we have see the children every terms is here is seen sequence. Every terms differ from its preceding terms by a constant terms by a constant number which is called the common difference. Then this progression is said to be in arithmetic progression. If every term difference between second term and first term, third term and second term, fourth term and third term and so on is a constant, here this constant is 2, then this progression is known as arithmetic progression. तो हमें एक चीज़ पता चल गया चिल्ड्रेन कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब होता है तो हम जो ये प्रीसीडिंग टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे सपोज कीजिए एक हम इवन का भी ले सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. हियर ऑल्सो 4 minus 2 is equal to 2, 6 minus 4 is equal to 2. Here also this is the every term, every preceding terms is obtained by adding this constant 2. So this progression is also in arithmetic progression. Okay children, so we have learned about what is the arithmetic progression. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जो सारे टर्म्स होते हैं चिल्ड्रेन उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है जिसे हम यहाँ पे कांस्टेंट कहते हैं. अब सपोज कीजिए मुझे इसका जनरल फार्मूला फाइंड करना है. हाउ वी कैन फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्योंकि ये प्रोग्रेशन कितने भी टर्म्स तक की हो सकती है चिल्ड्रन. जैसे सपोज करो A1, A2, A3, A4 ये अप टू AN टर्म्स तक है, अप टू AN टर्म्स तक है. इसका फर्स्ट टर्म जो है चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म जो है हमारा A है. और सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है,
जो जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, कांस्टेंट की बात कर रहे थे, ये हमारा डी है चिल्ड्रन। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया चिल्ड्रन, सेकेंड टर्म हमारा A2 है। अब मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते चले जाएं तो नेक्स्ट जो हमारा सक्सीडिंग टर्म्स है मिलता जाएगा, ये A+D हो जाएगा चिल्ड्रन। अगर हम A3 को फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हमारा A2+D होगा, और A2+D को हम क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह पर पहले हम लिख दें A+D+D, तो ये हमारा क्या हो गया A+2D। अब देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A+, ये पहला है 1 - 1D 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं A+2 - 1D, इसे कैसे लिख सकते हैं A+3 - 1D, और इसी तरह से कंसेक्यूटिव हम चलते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा चिल्ड्रन जब an आएगा तो an को हम लिख सकते हैं an = A+n - 1D। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से चिल्ड्रन जो nth टर्म है हमारा उसे हम फाइंड कर सकते हैं कि nth टर्म पे क्या है। अगर हमें 2 या 3 कंसेक्यूटिव किसी सीक्वेंस के टर्म्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प से हम अपना nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया चिल्ड्रन nth टर्म को फाइंड करने का, कि हमारा किसी भी AP का जो nth टर्म होता है, दिस nth टर्म इज इक्वल टू डिनोटेड बाई an, एंड an इज इक्वल टू A+n - 1D। इनके मीनिंग समझते हैं। an हमारा लास्ट टर्म है, या जिसको हम nth टर्म कहते हैं, यही हमारा लास्ट टर्म भी है। a हमारा फर्स्ट टर्म है। d आपको पता ही है, d हमारा है कॉमन डिफरेंस। और n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर AP में नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे सपोज कीजिए एक AP हमने बस इतनी ही बड़ी लिखी 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे ले जाकर हमने 16 पे ख़त्म कर दिया। एक जब हम AP लिख रहे हैं तो 2, 4, 6 से लेकर कर इसे हम 126 तक लेकर जा रहे हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है दोनों डिफरेंट होंगे। इनके नंबर ऑफ टर्म्स और इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। बट इस हम जनरल फार्मूला की हेल्प से बच्चों किसी भी AP में जैसे 4 चीज़ें हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, कोई भी 3 गिवन है तो 4th को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मुझे एक क्वेश्चन मिला हुआ है, यही इसी को लेकर चल रही हूँ 2, 4, 6, ठीक है ना, और मुझे निकालना है, कहाँ तक निकालना है चिल्ड्रन, तो मुझे सपोज करो मुझे A10 निकालना है कि ये जो मैं AP लिख रही हूँ इसका 10th टर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है देखिए, A2 है, D हमारा क्या होगा 4 - 2 2, n कितना मिला हुआ है, n = 10 मिला हुआ है, और मुझे A10 फाइंड करना है कि A10 क्या होगा। ओके, अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे देखो वैल्यू को पुट कर दूंगी। मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, an की जगह पर लिख दूंगी A10। a हमारा है 2 + 10 - 1 × 2, सो दिस इज 2 + 9 × 2, दिस इज 2 + 18 एंड दिस इज 20। मतलब हमारा जो 10th टर्म होगा चिल्ड्रन वो हमारा 20 होगा। ओके चिल्ड्रन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।